Hello and welcome to my channel MS Narendram. So through this channel I am going to teach you today. In today's session I am going to teach you coordinate geometry. So coordinate geometry is a very integral part of mathematics, especially for class 9th and class 10th also. Okay, in 11th and 12th you have also to study it, but we are considering here only for class 9th and 10th. Okay, so let's get start. Okay, so कोऑर्डिनेट सिस्टम इज व्हाट. सबसे पहले बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये कहाँ से, इसका मतलब ये ओरिजिन है. तो एक बार रेन डेकार्टे वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन एंड अ साइंटिस्ट. ही सॉ समथिंग एट नाइट and he thought about how to locate a point in a plane or a space. In the net, he was sleeping right now there, okay, at that time, and he thought, if I have to locate a point within this net, so what should be the reference point and how can I locate the point? So through this concept, the concept of coordinate geometry exists, okay. Therefore, at the name of René Descartes, it has been called Cartesian plane or Cartesian system of coordinate geometry, or Cartesian explanation, rectangular explanation of coordinate geometry. Okay, so Cartesian plane we say at the name of René Descartes. Okay, so we will be studying today about coordinate geometry. This is the very first class, so watch the video till the end and be focused. Okay, so here you can see that here is an axis called x o x dash or x dash o x axis. Okay, it is generally said to be x axis, and here is an axis y o y dash, or you can say y dash o y. It is generally called y axis. Okay, so this whole axis, ये axis जो है x dash o x जो है, इसको हम लोग बोलते हैं x axis. ठीक है, उसके बाद y डैश o y को जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं y एक्सिस. इस चीज को समझेंगे, ठीक है ना. अब एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसको जनरली हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं. क्या मान लेते हैं? ओरिजिन मान लेते हैं. और इस ओरिजिन को जनरली o से डिनोट किया जाता है. आप इसको किसी और नाम से भी डिनोट कर सकते हैं, किसी और पॉइंट से भी डिनोट कर सकते हैं, बट जनरली इट इज टेकन एज O. सो ओरिजिन इज व्हाट? ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस. क्लियर है? x एक्सिस मतलब x डैश o x और y एक्सिस मतलब y डैश o y. ठीक है, अब क्या होता है, ओरिजिन आपको मिल गया. नाउ यू हैव टू लोकेट एनी पॉइंट इन दिस प्लेन, कार्टेशियन प्लेन. ठीक है, ये पूरा जो है x एक्सिस और y एक्सिस से मिलकर एक प्लेन बना. तो सबसे पहले इस प्लेन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझते हैं. अगर हम इस ये बोर्ड की, व्हाइट बोर्ड की बात करें, तो इसका ये लेंथ है और ये इसका ब्रेथ है. तो कहीं ना कहीं अगर ये लेंथ है, इसको x एक्सिस हम मान लेते हैं और इस ब्रेथ को y एक्सिस मान लेते हैं, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस कॉर्नर पे है. ठीक है, तो अगर हमें किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कॉर्नर के रिस्पेक्ट में हम किसी पॉइंट को कहीं भी लोकेट कर सकते हैं. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इट मींस जनरली ओरिजिन इज व्हाट? ओरिजिन इज द रेफरेंस पॉइंट. इट इज द रेफरेंस पॉइंट. ये क्या होता है? रेफरेंस होता है. ठीक है ना, जहां से आप किसी चीज को मेजर करते हो. ठीक है, उसके बाद अब थोड़ा सा क्वाड्रेंट सिस्टम के भी बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं. ओरिजिन O हो गया, ये रेफरेंस पॉइंट, इसको हम जनरली लेते हैं. ठीक है, अब इसके लिए थोड़ा समझिए. अब मान लीजिए कि कोई जगह है बीच में, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट गोपालगंज. ठीक है, गोपालगंज इज अ प्लेस. ओके, एंड यू आर देयर एट पटना, and somebody is at Muzaffarpur. So I am asking that where Gopalganj is located. Okay, so for the people who is living in Muzaffarpur, the direction will be different from the people who is living in Patna.
Are you getting? So it is very important to take the direction of Gopalganj by unique, unique reference. That unique reference may be either Muzaffarpur, may be either Patna, or something else, some other places. Are you getting? Some other place it can be. So somebody is saying that I will be taking the location फ्रॉम मोतिहारी. ओके, सो अगर हम मोतिहारी का लोकेशन जानना चाहते हैं, सॉरी मोतिहारी से हम गोपालगंज का लोकेशन जानना चाहते हैं, ये 3 प्लेसेस है, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा. ये 3 प्लेसेस है, मुजफ्फरपुर, पटना एंड मोतिहारी. ठीक है, हमें गोपालगंज की लोकेशन जाननी है कि गोपालगंज कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में है, कितना किलोमीटर, व्हाटएवर जो भी है. अगर हम गोपालगंज को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लें, ये सारे सबको अगर हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, यानी कि पॉइंट से अगर इसको इंडिकेट करें, तो आप देखोगे कि जो आदि मुजफ्फरपुर है उसके लिए गोपालगंज का डायरेक्शन अलग होगा, डिस्टेंस भी अलग होगा. जो आदि मोतिहारी है उसके लिए भी अलग होगा, और जो पटना है उसके लिए अलग होगा. कहने का मतलब इन तीनों के लिए गोपालगंज का जो डायरेक्शन होगा और जो लोकेशन होगा वो डिफरेंट होगा. तो फिर ये बात आती है कि आखिर हम गोपालगंज को लोकेट कहां से करें. ठीक है, तो गोपालगंज को कहां से लोकेट करें ये दुविधा मन में आ रही है. ठीक उसी तरह से अगर हमको इस पूरे प्लेन में, इस पूरे बोर्ड पे अगर कहीं पे सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट लोकेट करना है, ये हमारा कोई पॉइंट है, इसको लोकेट करना है, तो इसको लोकेट करने के लिए आखिर हम रेफरेंस क्या ले रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है. आखिर हम कहां से इसका डिस्टेंस काउंट कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है. सो देयर मस्ट बी अ रेफरेंस पॉइंट. सो इन दिस 3 प्लेसेस अगर हम किसी एक को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, अगर सपोज हम लोग मोतिहारी को ही रेफरेंस पॉइंट मान लें, तो फिर गोपालगंज को लोकेट करना मैप पे बहुत ही इजी हो जाएगा. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपैरेटिव टू टेक अ रेफरेंस पॉइंट which is known to be as origin in this Cartesian coordinate system. Okay, and then after once you get the origin or the reference point, you can locate the point. So now the matter is, now the question is how can we locate the point? Okay, अब यहाँ मोतिहारी से अगर इसको लोकेट करना है तो यहाँ से जो भी देख लेना, ये समझ सकते हैं हम लोग इसका डायरेक्शन क्या है, मोतिहारी से कितनी दूरी पे है. ठीक है, तो एक फिक्स डिस्टेंस, फिक्स लोकेशन गोपालगंज का विथ रेस्पेक्ट टू मोतिहारी मिल जाएगा. गेटिंग? सिमिलरली अब थोड़ा समझिए, ये एक ओरिजिन आखिर इसको क्यों मानते हैं, क्योंकि हमें इसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सारे पॉइंट्स को, सब पॉइंट्स को यहाँ पे प्लेन में हमें लोकेट करना होता है. इसलिए इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको वाई एक्सिस मानते हैं, और जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसको रेफरेंस पॉइंट यानी कि ओरिजिन मान लेते हैं. ठीक है, चलिए अब क्या है कि इस डायरेक्शन को इधर इसको पॉजिटिव बोलते हैं, ये पॉजिटिव है, इधर ये नेगेटिव है. कहने का मतलब ओरिजिन से राइट साइड क्या है, पॉजिटिव है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस जो है नेगेटिव है, ओरिजिन से ठीक ऊपर वाई एक्सिस जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, और ओरिजिन से ठीक नीचे वाई एक्सिस जो क्या है वो नेगेटिव है. इस चीज को ध्यान में रखेंगे. ये प्लस हो गया, ठीक है, ये माइनस हो गया, ये माइनस, और ये प्लस हो गया. ठीक है, तो आप एक चीज देखोगे, यह जो एक्स ओ वाई जो रीजन है ये प्लस एक्स एक्सिस और प्लस वाई एक्सिस से मिलके बना है. यानी कि इसकी अगर कोऑर्डिनेट की बात करेंगे हम, तो ये हमेशा इस प्लेस में जो कुछ भी रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. यानी कि एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव. बहरहाल हम लोग आगे थोड़ा सा देखते हैं कि किसी पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे. तो कैसे लोकेट करेंगे, इसके लिए हमें किसी दो, अगर कोई पॉइंट प्लेन में है तो हम ऐसे लोकेट करेंगे. सपोज ए और बी है. ठीक है, तो ए और बी का मतलब हुआ कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है. ठीक है ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट है ए और वाई कोऑर्डिनेट है बी. ठीक है, अब ए पॉजिटिव होगा तो प्लस पॉजिटिव यहां पे ले सकते हैं, और बी पॉजिटिव होगा तो प्लस ले सकते हैं. ए नेगेटिव होगा तो माइनस ले सकते हैं, और बी पॉजिटिव हुआ तो प्लस ले सकते हैं. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो यहाँ पे इस जो क्वाड्रेंट है, यानी कि देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट
एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो है एक्स और वाई ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई जो है ये क्या है, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इस चीज को समझना, ऐसे इसको फर्स्ट हटा देते हैं, फर्स्ट सेकेंड। और ये जो है एक्स डैश ओ वाई डैश ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और उसके बाद ये जो है एक्स ओ वाई डैश ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, समझिएगा इस चीज को, ठीक है ना। तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स ओ वाई, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई, यानी कि ये पूरा रीजन जो होगा सेकंड क्वाड्रेंट होगा। एक्स डैश ओ वाई डैश ये पूरा रीजन जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। फिर एक्स ओ वाई डैश ये जो पूरा रीजन होगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। सो देयरफॉर we can conclude that there are four quadrants, okay, first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखते हैं तो पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, तो x कोऑर्डिनेट पहले क्या है, नेगेटिव है, और y क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका जो होगा माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में देखते हैं तो x नेगेटिव और y भी नेगेटिव, यानी कि माइनस माइनस हो गया, ठीक है। फोर्थ देखते हैं x पॉजिटिव और y नेगेटिव, यानी कि प्लस और ये माइनस, ठीक है ना, बात को समझ रहे हो आप, ठीक है। चलो तो ये हो गया प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट एंड प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज ए और बी दोनों पॉजिटिव है, ए भी ग्रेटर देन 0 है, लेट अस से, इसको हटा दीजिए, यू नो ए ग्रेटर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0। हमने ए बी दो ऐसा पॉइंट ले लिया कि ए बी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव क्यों लिए, बताएंगे क्यों लिए। तो पॉजिटिव लेने का मतलब है कि अगर आप प्लस ए लिखोगे तो प्लस है, माइनस ए लिखोगे तो नेगेटिव है, माइनस है, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, तो यहां पे a b कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहां पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, a b, क्यों भाई, तो a b पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कोई भी अगर पॉइंट जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लोकेटेड होगा। उसके बाद a अगर मान लेते हैं नेगेटिव है तो माइनस ए कॉमा बी पॉजिटिव है तो माइनस ए और प्लस बी सेकेंड क्वाड्रेंट में लोकेटेड होगा, ठीक है। उसके बाद माइनस ए कॉमा माइनस बी यानी दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में लोकेटेड होगा, ठीक है। उसके बाद प्लस ए और माइनस बी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लोकेटेड होगा, बात को आप समझ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए बी, सेकेंड में माइनस ए बी, थर्ड में माइनस ए माइनस बी और फोर्थ में ए माइनस बी। कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट में ए बी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, सेकेंड में ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, थर्ड में ए नेगेटिव बी नेगेटिव और फोर्थ में ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वाड्रेंट वर्क करता है और ये है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक छोटा सा क्वाड्रेंट हमने बताया, ठीक है ना। इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखते हैं, ये फिर से कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने लिया है एक्स डैश ओ एक्स और यहाँ पे वाई डैश ओ वाई। अब यहाँ पे हमें किसी पॉइंट को लोकेट करना है, ठीक है। तो पॉइंट मतलब क्या हुआ, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट और उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट दिया होगा। तो अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें ए बी को लोकेट करना है, वी हैव टू लोकेट ए कॉमा बी, ठीक है। और चलो हम मान लेते हैं कि ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, हमें इसको लोकेट करना है इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है ना, इस रेक्टेंगुलर प्लेन में हमें लोकेट करना है ए बी को। तो हाउ कैन वी लोकेट इट, तो सबसे पहले ए बी लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट जो है, एक्स कोऑर्डिनेट
एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ए है, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट है बी, ठीक है, ठीक है। अब एक्स कोऑर्डिनेट को एक और नाम से बोला जाता है, वो हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। एब्सिसा यानी कि एब्सिसा मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ही होता है, और वाई कोऑर्डिनेट को एक दूसरे नाम से बोलते हैं, वो होता है ऑर्डिनेट। क्या होता है, ऑर्डिनेट, ठीक है। हिंदी में पढ़ोगे ना तो हिंदी में कोटि और भुज ऐसे ही नाम है, ठीक है। कोटि एब्सिसा कोटि, और ऑर्डिनेट जो होता है वो भुज होता है, ठीक है। अब ये समझेंगे हम लोग कि ये क्या है, ठीक है। यानी कि दिस एक्स कोऑर्डिनेट मींस एब्सिसा एंड दिस वाई कोऑर्डिनेट मींस ऑर्डिनेट, ठीक है। और ए बी अगर एक पॉइंट है, तो ए बी अगर इस पॉइंट को हमें लोकेट करना है, और मान लेते हैं कि ए और बी दोनों पॉजिटिव है, तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो ए का मतलब क्या है, तो जरा इसको समझिए। सपोज ये कोई पॉइंट पी है, पी इक्वल टू ए बी, तो यहां पे अगर पॉइंट पी है, इसका मतलब है कि जब आप इस पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस पॉइंट पी से, तो ये जहां पे इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, ये पॉइंट पी से जब हम एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, मान लेते हैं कि पीएम हमारा जो है वो परपेंडिकुलर है, तो एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेप्ट किया ये ओ एम जो दूरी होगी, ये जो दूरी है ओ एम, अगर यह दूरी ए है, यानी कि यहां से यहां के बीच में इसकी दूरी अगर ए है, तो हम ये कहेंगे कि इस P का x कोऑर्डिनेट जो है वो a है, कॉमा, ठीक है, समझ रहे हो। और अगर ये पूरी PM की दूरी, यानी कि यह पूरा जो PM है, PM OM की दूरी a है, तो x कोऑर्डिनेट a हो जाएगा, और PM की दूरी अगर b है, तो हम कहेंगे कि y कोऑर्डिनेट हमारा b हो गया। इस चीज को समझिए। कहने का मतलब है कि अगर कोई पॉइंट P है और उससे हमने परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PM, तो जहां पे परपेंडिकुलर का फुट है, तो इस फुट पे हम देखेंगे कि ये ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, तो ओरिजिन से ये OM दूरी पे है, और OM की डिस्टेंस अगर मान लेते हैं, लेट OM इक्वल टू, अगर A है OM की दूरी, तो इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट A हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको B नहीं लिखो, अब दूसरे तरीके से भी समझ लो। अगर हम इस P पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सपोज ये n कोई पॉइंट है, n पॉइंट है, ठीक है, और y एक्सिस से हमने इसको ड्रॉ किया, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर यहां पे, तो यह जो दूरी होगी ON, सपोज अगर ये B है, मान लेते हैं कि अगर ये B है, यहां से यहां इसकी दूरी अगर B है, तो जाहिर सी बात है जब ये B होगा तो ये भी B होगा, ठीक है, ये A है तो ये भी A होगा, ठीक है ना। तो P से जब आप y एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो परपेंडिकुलर के फुट यानी N से O की जो दूरी है, अगर ये B है, तो ये B जो होगी इस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट होगी, ठीक है। कहने का मतलब है कि x कोऑर्डिनेट A और y कोऑर्डिनेट B, और ये कैसे होता है, तो हम उस पॉइंट को जब परपेंडिकुलरली ड्रॉ करते हैं एक्सेस पे, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस अगर इसको एक साथ बोलेंगे तो x y एक्सेस बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक्सिस का प्लूरल क्या होता है, एक्सेस होता है। तो x y एक्सेस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वहीं रेस्पेक्टिवली x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, किसी भी पॉइंट का। तो आप इस चीज को समझ गए, इज दैट क्लियर। चलिए अब हम एक छोटा सा एग्जांपल और लेंगे, दूसरे तरीके से इसको समझते हैं। किसी जनरल कोई पॉइंट जो है 2 3 या 4 5 ऐसे इसको रिप्रेजेंट करके, थोड़ा सा वेट करें। तो यहाँ पे देखेंगे, ये फिर से हमने लिया x डैश o x और y डैश o y, ठीक है। तो एक बात बताइए कि अगर किसी पॉइंट को हमें लोकेट करना है, सपोज हमें लोकेट करना है 3 2,
एक कोऑर्डिनेट पॉइंट हमने ले लिया, एक कोऑर्डिनेट ले लिया 3 2, इसको लोकेट करना है। तो 3 2 को हाउ कैन वी लोकेट इट? ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो सबसे पहले कैलिब्रेशन करेंगे। सपोज ये कोई स्केल है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, किसी स्केल से इसको कैलिब्रेट करेंगे। कैलिब्रेट मींस डिवाइड करेंगे इसको कुछ पॉइंट्स में। तो चलो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, आगे भी होगा, ठीक है। फिर ये 1 2 3 4, इधर 4 ही लेते हैं। और ओरिजिन के लेफ्ट साइड जब हम जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर ओरिजिन के नीचे यानी कि -y एक्सिस पे, मैंने पहले ही बताया कि ये -y एक्सिस है, ये -x एक्सिस है, ये +x एक्सिस है और ये +y एक्सिस है। तो इस पे आप जब लोकेट करोगे तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन नीचे की तरफ लोकेट करोगे, ठीक है। तो हमें लोकेट करना है 0.32 को, ठीक है ना, हमें 0.32 को लोकेट करना है। तो अगर कैलिब्रेशन सही ढंग से हुआ है, कहने का मतलब है कि इसको हमने जो डिवाइड किया है एक्स एक्सिस को स्केल लेके, अगर ये सही ढंग से लिया है और हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस पूरे प्लेन में इस 0.32 का लोकेशन क्या होगा, कहां पे ये पॉइंट सिचुएटेड होगा, इसको अगर जानना है तो कोऑर्डिनेट के सहायता से, कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम इसे बहुत ही इजी तरीके से जान सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले यहां पे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3 है। तो इस 3 पे ना एक वर्चुअल एक ऐसे लाइन जो है, ठीक है, इसको ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद से एक 2 है, तो 2 y कोऑर्डिनेट है चूंकि, तो 1 2 यहां पे आ रहा है y कोऑर्डिनेट में। अब यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 यहां पे है, तो पैरेलल हमने 3 पे लोकेट किया इसको, ठीक है, लाइन को ड्रॉ किया। तो ये जो पॉइंट है ये कहां पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों लाइन यहाँ पे 1 2 है, तो ये 2 वाला जो लाइन है और ये 0.3 वाला जो लाइन है यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि दिस पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ 0.32 इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, अब सपोज ये पॉइंट समझ गए, अब इसको आप हटा सकते हो, ठीक है, यू कैन रिमूव इट। आपका काम हो गया, आप समझ गए होंगे कि किसी पॉइंट को कैसे लोकेट करना होता है। इसलिए कभी भी कोऑर्डिनेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में या कोई टेस्ट में, तो वहां पे ग्राफ पेपर दिया गया होता है आपको, ठीक है, जहां पे ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी कैलिब्रेटेड होते हैं, इक्विडिस्टेंट होते हैं, ठीक है। अब सपोज कोई दूसरा पॉइंट हमें लोकेट करना है 4 और सपोज 2 और 5 लोकेट करना है, 2 5, ठीक है ना, 2 5 लोकेट करना है। तो 1 2 यहां पे आया, तो इस 2 पे एक एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। और इस ध्यान रहे इस पूरे लाइन का मतलब होता है x इक्वल टू 2, चूंकि 1 2 x क्या है यहाँ पे 1 2 2 है, इस पूरे लाइन का इक्वेशन जो होगा वो x इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। उसके बाद हमें एक 5 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है। थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, बढ़ा दिए, इसको पहले ऊपर ले जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 y कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट यहां पे हम इसके पैरेलल लाइन एक खींचेंगे। सपोज एक पैरेलल लाइन हमने ऐसे खींचा, ठीक है, आर यू गेटिंग? सो y एक्सिस पे जब आप x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू दैट हो जाता है। कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 5 है ना, 5 यूनिट है ना, यानी कि यह जो इक्वेशन लाइन होगा, यह जो लाइन है, ये लाइन इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू 5, और ये जो लाइन है इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू 2। अब y इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 2 जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, समझ रहे हो बात को, ये लोग जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे ये जो पॉइंट होगा यही पॉइंट होगा 0.25। बात को समझिए आप, ठीक है, इधर क्लियर। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हमें डिनोट करना है कोई पॉइंट, सपोज -4 और 3 को रिप्रेजेंट करना है
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी कि इस प्लेन पे, ठीक है। सो -4 और 3 को कैसे करेंगे? तो -4 के लिए पहले एक बात बताइए कि ये जो -4 है ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है कि वाई कोऑर्डिनेट है? एक्स कोऑर्डिनेट है, ध्यान रहे, जो पहले होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट, और जो सेकेंड टाइम में होता है वो वाई कोऑर्डिनेट, और जो थर्ड में होता है वो जेड कोऑर्डिनेट होता है। तो वो जेड कोऑर्डिनेट कब आता है? जब हम स्पेस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पे प्लेन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट आएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट -4 है, वाई कोऑर्डिनेट 3 है, यानी कि एब्सिशा जो है, एब्सिशा इज -4 एंड ऑर्डिनेट इज 3। तो एब्सिशा -4 देखो, -1 -2 -3 -4, यानी कि यहाँ पे आएगा -4, ये y = 5 का लाइन है, इसको अलग इधर लिखते हैं। तो -1 -2 -3 -4 यहाँ पे आया। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द y एक्सिस। तो ये जो लाइन होगा ये x = -4 का लाइन होगा, ठीक है। फिर 3 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, तो 1 2 3। अब ध्यान रखो कि 3 क्या है? पॉजिटिव है। -4 नेगेटिव था तो हम नेगेटिव x एक्सिस पे चले आए, यहाँ पे 2 पॉजिटिव था तो हम प्लस x एक्सिस पे चले गए थे, ठीक है। जबकि यहाँ पे -4 नेगेटिव है तो हम -x एक्सिस पे आएंगे। अगर यहाँ पे -3 होता y कोऑर्डिनेट की जगह पे तो हम -y कोऑर्डिनेट पे जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? +3 है, तो +3 है तो +y एक्सिस पे जाएंगे। तो 1 2 3 यहाँ पे हमने देखा। अब इस पॉइंट 3 पे हम एक x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। अब x एक्सिस के पैरेलल ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया, तो यह जो लाइन होगा इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा y = 3, ठीक है। क्यों? अब ये भी हम डिस्कस करेंगे। अभी बस फिलहाल इतना जानिए, यह जो पॉइंट x = -4 है, इसका जो लाइन है, और यह जो लाइन है y = 3, ये इंटरसेक्ट किया यहाँ पे, और ये इस पॉइंट को लोकेट कर दिया गया, यानी कि -4 3 पॉइंट जो है यहाँ पे इजीली लोकेटेड हो गया। क्लियर है? -4 3 को हमने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पे लोकेट कर दिया है। आप इसको अच्छे से समझें। अरे बच्चों, अब इस चीज को थोड़ा समझिए आप फिर से। ये x dash o x, y dash o y, there are 2 lines and the point of intersection of these 2 lines is known to be origin or the reference point, ठीक है। ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव x एक्सिस, ओरिजिन के लेफ्ट साइड नेगेटिव x एक्सिस, ओरिजिन के अपर साइड पॉजिटिव y एक्सिस, ओरिजिन के डाउन साइड जो है नेगेटिव y एक्सिस है, ठीक है। तो अब इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कर देते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगा, इसको थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगा? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, x के टर्म में आप नहीं इसको कभी ये दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू पूरे x एक्सिस पे वेरी करेगा, ठीक है। हर एक पॉइंट, यानी कि सपोज जहां पे कोई पॉइंट है और कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो ये दोनों 2 पॉइंट हो गए, 2 पोजीशंस हो गए। तो x एक्सिस को x के टर्म में आप नहीं डिनोट कर सकते, क्योंकि कुछ भी कांस्टेंट x में नहीं है। बट एक चीज कांस्टेंट है y में, कि पूरे x एक्सिस पे y कहीं भी देखोगे वो 0 आएगा। अच्छा बताओ, यहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा? y कोऑर्डिनेट का 0, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0, ओरिजिन पे तो x भी 0 y भी 0, यहाँ भी y 0, यहाँ भी y 0, सब जगह पूरे x एक्सिस पे y का जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर होता है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज रिटन एज y = 0। इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? तो y एक्सिस का इक्वेशन जो होगा ठीक उसी तरह से जैसे मैंने समझाया कि पूरे y एक्सिस पे एक ही वैल्यू सेम रहेगा और वो है x = 0,
यानी कि पूरे वाई एक्सिस पे एक्स कहीं भी देखो ओरिजिन के अपर साइड या ओरिजिन के डाउन साइड कहीं भी देखो तो x क्या होगा, 0 होगा। यानी कि y एक्सिस का इक्वेशन जो होगा वो होगा x इक्वल टू 0। ठीक है, समझ गए, क्लियर है। अब चलो एक चीज समझते हैं कि कोई पॉइंट A है, मान लो कि यहां से यहां तक यह जो पॉइंट है, यह जो डिस्टेंस है A है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए अच्छे से, ये डिस्टेंस जो है A है यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे सपोज ये O है और ये M है, ठीक है। तो OM का डिस्टेंस A है। अगर हमें लिखना है x इक्वल टू A डिनोट करना है तो x इक्वल टू A डिनोट करेंगे, यानी कि x इक्वल टू 0 क्या होता है पहले ये बताइए। x इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या हुआ, ये y एक्सिस, ठीक है। तो x इक्वल टू -1 कहने का मतलब क्या हुआ कि यही y एक्सिस थोड़ा सा लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। x इक्वल टू 2 कहने का मतलब क्या होगा कि यही y एक्सिस थोड़ा पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ 2 में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें ये a x एक्सिस पे a के लिए, पॉइंट a के लिए अगर हमको डिनोट करना है कोई इक्वेशन, तो ये इक्वेशन क्या होगा, तो x इक्वल टू a यहाँ पे है, a यहाँ पे है, इस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू a, ठीक है। समझ रहे हो बात को, क्यों, जरा ध्यान से देखना। इस पूरे लाइन पे कहीं भी आप x का वैल्यू पूछोगे, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, तो a है। यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, a है। यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, a है। Therefore this whole line can be represented, can be written as x equal to a. So this will be the equation. अगर मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट हमारा 4 है, 4 है पॉइंट, ठीक है। तो मतलब 1 2 3 4 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा x इक्वल टू a है और x इक्वल टू यहाँ पे सपोज 4 पॉइंट है, ठीक है, 4 पॉइंट है। तो इसको रिप्रेजेंट करना है, अगर हमें x इक्वल टू 4 को, इस लाइन को दिखाना है, तो x इक्वल टू 4 हमारा ये लाइन हो जाएगा, ठीक है, x इक्वल टू 4, यानी इस पूरे लाइन पे x का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। सिमिलरली y इक्वल टू, अगर हमें b शो करना है, ठीक है, तो y इक्वल टू b कहने का मतलब हुआ कि सपोज यहाँ पे b है, यहां से यहां तक इसकी जो दूरी है ये कितनी है, ये b है, यह दूरी b है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y इक्वल टू b, यानी कि y हमेशा b रहना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब हम x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, वो भी कितने डिस्टेंस पे, तो b डिस्टेंस पे, तो यह लाइन y इक्वल टू b हो जाएगा, ठीक है। अगर y इक्वल टू 4 हमें शो करना है, तो 1 2 3 4, अगर यहाँ पे 4 मान लेते हैं, तो y इक्वल टू 4 हमारा ये लाइन हो जाएगा, y इक्वल टू 4 ये लाइन हो जाएगा। क्या आप बात को समझ रहे हो, y इक्वल टू 4 ये लाइन हुआ, x इक्वल टू 4 ये लाइन हुआ। और ये देखना एक चीज, ये y इक्वल टू 4 लाइन और x इक्वल टू 4 लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे x 4 और y भी 4 पॉइंट बन जाएगा ऑटोमेटिकली। क्या बात को समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू a का लाइन ये है, y इक्वल टू b का लाइन ये है, ये जहां पे इंटरसेक्ट किए हैं तो x कोऑर्डिनेट a और y कोऑर्डिनेट b यहाँ पे बन गया, ऑटोमेटिकली बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0, ठीक है। एंड थ्रू दिस वे we just represent any point, we just write the equation of any line, okay, especially in x and y term. But some equations are such in which x and y both are included, okay. So we will be discussing later about that in the next video, that how they should be represented on this number line, okay. But one thing more, यहाँ पे एक चीज और बता दें, x dash y डैश ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। ये सपोज 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है। सपोज यहाँ पे 3 1 2 3 पॉइंट है। अगर इसको पॉइंट फॉर्म में लिखना होगा, कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना होगा, तो आप कैसे लिखोगे, देखो x एक्सिस तो 1 2 3 है, तो x कोऑर्डिनेट तो 3 हो गया, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ जरा। तो y कोऑर्डिनेट पूरे x एक्सिस पे
पूरे x एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है, यानी कि y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 3 0 यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से या ये जो पॉइंट होगा ये 2 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर मान लो कि ये -3 है, ये वाला लाइन -1 -2 -3, तो ये पॉइंट जो होगा ये वाला पॉइंट ये -3 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से सपोज 3 0 नहीं, हमें 0 3 अगर लोकेट करना है, तो 0 3 का मतलब क्या हुआ, चलो कोई कहता है कि 0 3 पॉइंट को लोकेट करो कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसका मतलब हुआ कि x0 और y3, तो x0 कहां पे रहता है, पूरे y एक्सिस पे x0 रहता है। ठीक है, तो x0 तो ठीक है पूरे y एक्सिस पे, लेकिन y वहां पे 3 होना चाहिए, तो y 1 2 3 यहाँ पे हो गया, यानी कि यह जो पॉइंट होगा यहाँ पे x0 और y 3 रहेगा। बात को आप समझ रहे हो, इस तरह से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ सिस्टम को समझते हैं और किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं। प्यारे बच्चों, तो मैं समझता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आई थिंक कि अगर अच्छा लगा होगा तो ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। हाँ, बुरा लगा होगा तो कोई बात है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आई एम 100% श्योर कि आपको बुरा नहीं लगा होगा, क्यों लगेगा। ठीक है, अब देख रहे हो इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे जैसे हजारों टीचर्स आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही एक बड़ी डेडिकेशन है, नॉट ओनली फ्रॉम मी, फ्रॉम ऑल द टीचर्स हु हैज बीन वर्किंग फ्रॉम देयर होम टू टीच यू स्टूडेंट्स। ओके, इसलिए वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए और इसमें जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसको अच्छे से इंटरनलाइज करिए। ठीक है, और कहीं भी कोई दिक्कत है आप उसको पूछिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट इट। In this session, I have taken the class of coordinate geometry part 1.